Hello students, I am Tarna Vishwas and back with another lecture of Principle of Inheritance and Variations. In the last class, we have discussed some basic concepts of genetics and we have discussed the Mendel work. अब उसी Mendel work को further हम increase करते हैं यानी कि today we discuss the principles of inheritance या Mendel laws. यहाँ पर जो मेंडल लॉज है, मेंडल वर्क जो है दैट वाज कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ 3 लॉज और वो 3 लॉज क्या थे? 3 लॉज ऑफ मेंडलिज्म, 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच आर आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और द मेंडलिज्म. अब यहाँ पर जो है फर्स्ट लॉ जो है दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. What does this states? According to this, characters they are controlled by discrete units. अब वो discrete units में पहले भी discuss कर चुके. They are called factors. यानी कि according to this, characters are controlled by discrete units. और वो discrete units क्या है? These discrete units are called factors. Factors. यानी कि जिनको हम और क्या बोलते हैं? आज हम बोलते हैं उनको जीन्स. अब ये जो फैक्टर्स हैं दे आकर्स इन पेयर्स. फैक्टर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? फैक्टर्स जो है दे आर इन पेयर्स इन एन इंडिविजुअल. अब देखो ये जो किसी इंडिविजुअल के अंदर फैक्टर कैसे प्रेजेंट होंगे? फैक्टर्स जो है दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स. अब अगेन इफ individual is having 2 different factor, अगर उन दोनों फैक्टर में से only one is able to express itself, that is dominant, and another which do not express itself, that is recessive. This is the law of dominance. It means if an individual is having 2 different factors, out of those 2 factors only one factor expresses itself, called the dominant. I have used the term dominant, and which is unable to express itself, that is recessive. यानी कि out of 2 factors, if present in an individual, only one express itself, and this is dominant, and which do not express itself, and another do not express itself, that is known as recessive. तो यहाँ पर मैंने 2 टर्म यूज किया आपके सामने, that is the dominant and the recessive. यानी कि dominant कौन सा होगा? जब दोनों एक साथ प्रेजेंट है. 2 dissimilar factors are present in an individual, only one expresses itself, that is dominant, and another which do not expresses, that is the recessive. अब मेंडल ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया? यहाँ पर जो है अब उसकी एक्सप्लेनेशन मेंडल ने क्या किया? He selected 2 plants where differs in one character. यानी कि मेंडल ने क्या? मेंडल crossed 2 plants. Mendel crossed 2 plants, one having the 2 pea plant, because his work was on Pisum sativum pea plant, garden pea. तो 2 pea plants को select किया. One is having the character of tallness, यानी कि selected one character. तो what type of cross it is? It is a monohybrid cross, जो मैं आपसे previous class में discuss कर चुकी हूँ term. That means law of dominance is related with a monohybrid cross. तो Mendel ने he selected tall pea plant. I've written it tall pea plant. और मैंने क्या बताया था? फैक्टर्स जो है दे आर प्रेजेंट इन पेयर इन डिप्लॉइडल. तो दोनों मैंने सेम लिया. प्योर टॉल पी प्लांट दैट इज अ होमोजाइगस. वी हैव ऑलरेडी यूज्ड होमोजाइगस वर्ड. ही क्रॉस टॉल पी प्लांट विद जो है वो ड्वार्फ पी प्लांट. दिस इज द ड्वार्फ. अब ये दे वर टेकन एज अ पेरेंट्स. नाउ they form the gametes. What type of gametes they can form? They form only T type of gametes. I write it in circle form. And this one forms the only small t type of gametes. That means only the probability of gamete formation, that tall forms only T type of gametes
and the dwarf one forms the only small t type of gametes. And on crossing, it results in a generation with both the two dissimilar factors. This is the F1 generation, first generation, and we also call that first filial generation. This is the term used, filial generation. And this is the F1 generation develops from the crossing of two parents. That means what the law of dominance says, out of two dissimilar factors, only one expresses itself. कौन सा express करेंगे? This one expresses itself and it comes out to be tall. यानी कि जो F1 generation आएगी वो क्या होगी? That is 100% tall. यानी कि इस generation में कोई भी dwarfness का character express नहीं करेगा. It means this is dominant and in its presence this one do not express. That means small t is a recessive character. This is the law of dominance. I think it's clear. Now, next we move to the second law, and this is the law of segregation. अब law of segregation क्या कहता है? यहाँ पर segregation का पहले मैं मीनिंग डिस्कस करती हूँ. Segregation is separation. यानी कि this is the second law, and this is also related with the monohybrid cross. यानी कि law of dominance and the law of segregation, they both are related with a monohybrid cross. Why? Because only single character is taken at a time. यहाँ पर जो है, what does law of segregation say? कि heterozygous twins, यानी कि मेंडल के यहाँ पर उसी क्रॉस को हम एक्सटेंड करते हैं. वहां पर हमारा क्या आया? किसी भी कैरेक्टर को ले लो, सेम हमारे रिजल्ट्स आएंगे. अगर हम फ्लावर कलर लेते हैं, फ्लावर पोजीशन लेते हैं, तो हमारा डोमिनेंट वन ही एक्सप्रेस करेगा. यहाँ पर हम उसी को एक्सप्रेस यहाँ करते हैं. अब देखिए हमारी F1 जनरेशन आई थी, यानी कि दिस इज अ हाइब्रिड टॉप. दिस इज हाइब्रिड टॉप. वी कैन कॉल इट हाइब्रिड टॉप. अब ये देखिए, अब ये जो है इसी सेम जनरेशन के इंडिविजुअल्स को क्रॉस कर दी जाए, यानी कि क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन अमंग देमसेल्व्स. यहाँ पर देखिए, it means having the same genotype. This is also a tall, but this is not a homozygous tall. What type of tallness is this? This is the heterozygous tall. It means when two heterozygous tall plants, tall pea plants were crossed, this is F1 generation. Now, what happens? Now the gamete formation. How the gamete formation? It means it can form two type of gamete, that is capital T type and the small t type. And this one, it can also form the similar type of gametes, capital T and the small. That is their gametes. Now, it means when an heterozygous individual is present, it can form two different types of gametes. I am writing only types only. That means they are of male, and you can write it as a female. That means sperms or the eggs. अब यहाँ पर क्रॉस करें तो this T crosses with this one. They do not cross among themselves. So the resulting generation will have the capital T, capital T. If this T crosses with this one, the resulting will be capital T and the small t. Next is, now this get the chance to cross, that is capital T and small t. And next this small t and this t. That is, they both become, this is the next generation, F2 generation, second filial generation. अब यहाँ देखिए, this is the genotype of all the offsprings in the F2 generation, and what is its phenotype? अब phenotype की अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो इसका phenotype क्या होगा? This is homozygous tall. This is, these both two are heterozygous tall. Means
they both have the same phenotype, but they are having the different genotype. And this is the dwarf. Dwarf is present in homozygous form. Why? Because it is a recessive character, and the recessive character expresses only in homozygous condition. It do not express itself in heterozygous form. अब यहाँ देखिए, तो अगर मैं इसकी रेशियो लिखती हूँ टॉलनेस और ड्वार्फनेस के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ इसकी फेनोटाइपिक रेशियो लिखूँ. तो इसकी फेनोटाइपिक ratio, that means on the basis of appearance, what is its ratio? That means 3:1. 3:1 means 100 plants are there. That means 75% are tall. That is, and the 25% are dwarf. These are dwarf. That is 25. तो रेशियो क्या है टॉलनेस और ड्वार्फनेस की? That is 3:1. This is the phenotypic ratio. अब मैं आपसे जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूं, तो मैं इसकी जीनोटाइपिक रेशियो क्या बता रही हूं यहाँ पर? आप देखिए, जेनेटिक मेकअप के बेस पर देखिए, these 3 are talls. It means यहाँ पर तीनों टॉल है, but their genotype is different. कैसे? This is a pure tall and this is the heterozygous. That means what is it? That is one. That is homozygous tall, pure tall, and 2 are heterozygous tall. This is heterozygous tall. And the rest 1. That is 1 is dwarf. That means the ratio comes out to be 1:2:1, and its phenotypic ratio comes out to be 3:1. यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर phenotypic और genotypic रेशियो क्या है? They both differs. जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था? 100% टॉल, यानी कि सारे प्लांट्स कैसे आए थे F1 जनरेशन में? They were tall. यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स को क्रॉस किया among themselves. When F1 generation individuals they are crossed among themselves, this is known as a self cross. यहाँ पर मैंने एक नया टर्म यूज किया, self cross. What is the meaning of self cross? That is the crossing of individuals of the same generation. यानी कि सेम जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको आपस में क्रॉस कर दी जाए. और हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो हमारी F1 जनरेशन क्या आई थी, उसका जीनोटाइप क्या था? ऑल वर टॉल बट दे वर हेट्रोजाइगस टॉल, या इसको हम हाइब्रिड भी टॉल कह सकते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस टॉल. यानी कि हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स दे आर क्रॉस्ड अमंग देमसेल्व्स. दिस इज नोन एज अ सेल्फ. अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन करते हैं. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है? Heterozygous parent. This now for this cross, these are the parents, and these they are the in a heterozygous parent. Two different factors are present for a character, but at the time of gamete formation, 2 factors for a character they separate, or we can call it segregate. 2 factors for a character they segregate from each other. इन दोनों ही केसेस में देखिए, दोनों ही क्या कर रहे हैं? They segregate from each other such that, and how to separate? That is the gamete receives only one factor या one allele out of 2. That means in an individual they can be factor can be recessive or dominant, but in the gamete none of the allele is dominant or recessive. All gametes are equal, and all gametes they get the equal chance to express itself. It means यहाँ पर क्या हुआ कि यानी कि किसी इंडिविजुअल के अंदर जो है वो 2 फैक्टर्स जो है वो एक साथ प्रेजेंट होंगे हाइब्रिड इंडिविजुअल्स के, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर. But at the time of gamete formation,
two factors they get segregated. यहाँ पर देखिए, if a phenotype genotype is capital T and small t, तो दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और दोनों गैमीट्स क्या है, दोनों गैमीट्स जो है वो इक्वल है यहाँ पर सेम केस में, एंड ईच गैमीट गेट एन इक्वल चांस, यानी कि दिस टी गेट एन इक्वल चांस एंड दिस टी आल्सो गेट एन इक्वल चांस टू एक्सप्रेस दिस, यानी कि गैमीट्स जो है वो क्या है, दे आर प्योर फॉर अ कैरेक्टर. इट मींस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम और क्या बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. यहाँ पर जो है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स है ये, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, एंड दिस इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ. तो ये बात ध्यान रखेंगे, दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ. तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब यहाँ पर हमने टॉलनेस का कैरेक्टर लिया है. अब मैं कहती हूँ कि आप फ्लावर कलर का कैरेक्टर ले लीजिए. तो फ्लावर कलर में क्या होगा कि अगर हम वॉयलेट फ्लावर वैरायटी को व्हाइट फ्लावर वैरायटी से क्रॉस करते हैं, they were selected as a parent pure violet flowered varieties, they are crossed with white flowered varieties. So what is the result of F1 generation? I have told you while discussing the 7 contrasting characters, in that case violet is the dominant character. That means in F1 generation violet expresses itself in F1 generation. Next law of segregation, if F1 individuals they were self cross of violet flower parent, what is the result? That means in that case 3 purple flower varieties, यानी कि violet flower varieties and 1 the white flower. That means they are having the same phenotypic ratio, और genotypic ratio करेंगे तो क्या होगा, 1 pure violet, 2 hybrid violet and 1 is the white. यानी कि किसी भी कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करोगे मेंडल के पी प्लांट को लेकर, तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो यहाँ पर फॉलो करेगा और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी यहाँ पर आपके रिजल्ट सेम आएंगे. नाउ वी मूव टू द थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन. यहाँ पर जो है दिस इज रिलेटेड विद द डायहाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो यहाँ पर जो हमारा लॉ है वो क्या, कौन सा लॉ है ये, दैट इज द थर्ड लॉ. और अब यहाँ पर जो है इस लॉ में मैं बात कर रही हूँ, यानी कि प्रीवियस लॉज में मैंने बात की ओनली सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम एंड दैट मींस दे आर रिलेटेड विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करूंगी तो इट इज रिलेटेड विद द डायहाइब्रिड क्रॉस. मैं पहले ही बता रही हूँ ये डायहाइब्रिड क्रॉस मींस दैट इज रिलेटेड विद द सिलेक्शन ऑफ 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम. अब यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment क्या कहता है, it says when two pairs of characters they are present in an individual. two different pairs, जैसे मैं अभी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्कस करूंगी इसके एक्सप्लेनेशन. तो 2 फैक्टर्स जो है वो किसी इंडिविजुअल में एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, बट दे कैन सेग्रीगेट और दे कैन सेपरेट, यानी कि 1 pair it gets separated independently from another pair of a character. यानी कि आप यहाँ देखो इसकी एक्सप्लेनेशन. तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल जो है he crossed a pea plant with by taking 2 characters. यहाँ पर 2 characters हम select करते हैं, that is round and yellow seed bearing plant. यानी कि उन्होंने सीड के 2 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट आउट किया, दैट इज राउंड, ये मैं फिनोटाइप लिख रही हूँ, राउंड एंड
येलो सीड, यानी कि यहां पर शेप और कलर लिया है, 2 कैरेक्टर्स हो गए। तो यानी कि ही क्रॉस्ड राउंड एंड येलो सीड बियरिंग pea plant with a small r y. That is the r, this represent wrinkled and yellow, wrinkled and green. Small y represents the green. That is wrinkled and green seed bearing plants. यानी they were selected as a parent. यहां पर आप देखो 2 different characters are selected, that is the shape and the color. तो 2 characters किसी इंडिविजुअल के अंदर एक साथ प्रेजेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर इनको जब क्रॉस किया तो 2 pairs of a trait, 2 pairs हो गए ट्रेट्स के, कौन कौन से, that is the round and yellow and the another pair is wrinkled and green. तो दो 2 different traits से 2 pairs of traits are combined in an individual, but when they are present together. आप देखिए यहां पर जब ये गैमीट बनाएगा तो at the time of gamete formation only one factor for a character is present in gamete, यानी कि इसमें से आर में से इस पेयर में से क्या होगा, only one is present, क्योंकि हाफ होंगे हमेशा गैमीट में। कितने होते हैं, जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है तो गैमीट के अंदर जीन्स भी कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। इट मींस इन 2 आर में से क्या आएगा, 1 आर इज प्रेजेंट और इसमें से वाई, यानी कि कभी भी गैमीट आर नहीं बनेगा और वाई नहीं बनेगा, यानी कि आउट ऑफ 2 फैक्टर ओनली 1 फैक्टर इज प्रेजेंट या 1 एलील इज प्रेजेंट। तो ओनली आर वाई टाइप ऑफ गैमीट इज फॉर्म बाय दिस वन। और यहाँ पर इस केस में आर वाई टाइप ऑफ गैमीट्स, तो यहाँ पर गैमीट्स क्या बने, जो है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अगर मैं कहूं कि आर आर गैमीट बन जाएगा, नो, क्योंकि ये क्या है, ये पेयर में प्रेजेंट है और गैमीट्स के अंदर कभी भी फैक्टर्स पेयर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। फैक्टर्स किसके अंदर पेयर में होंगे, फैक्टर्स जो है वो किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर पेयर में प्रेजेंट होंगे। और गैमीट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। इट मींस जितने कैरेक्टर्स लेंगे उनका 1 एक्सप्रेशन, ओनली 1 एलील इज प्रेजेंट इन एन गैमीट। यहाँ पर क्रॉस किया तो यहाँ पर सेम वही करेंगे हम लोग, F1 जनरेशन। तो यहाँ पर जब क्रॉस किया तो क्या आया, कैपिटल आर एंड दिस स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड द स्मॉल वाई, दोनों कंबाइन कर दिया। यहाँ पर लिखते एक बात ध्यान रखेंगे, हमेशा डोमिनेंट को पहले लिखेंगे और रिसेसिव वाले को बाद में लिखेंगे। तो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर में हम लोग रिप्रेजेंट। तो ये क्या आ गई हमारी F1 जनरेशन, दैट कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या बोलते हैं, वन दैट इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अगर मैं लिखती हूँ F2 जनरेशन तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो यहाँ पर जो है तो F1 जनरेशन जो है दैट कम्स आउट टू बी, दोनों में से आर में से कौन एक्सप्रेस करेगा, ओनली दिस आर विल एक्सप्रेस बिकॉज दिस इज डोमिनेंट, दैट मीन्स राउंड। और यहाँ पर मैं बात करूं कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से कौन एक्सप्रेस करेगा, दिस वन। तो ये कैसा कैरेक्टर है, दिस इज अ डोमिनेंट एलील। तो राउंड एंड येलो सीड बियरिंग प्लांट, इट मीन्स in F1 generation it comes out to be round and yellow. अब यहाँ पर क्या है, 2 factors for a character। अब ये देखिए दोनों प्रेजेंट है, राउंड भी है और रिंकल्ड का भी है, येलो भी है और ग्रीन भी है। अब हम F2 जनरेशन जब निकालते तो हम क्या करते हैं, जैसे पहले हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या किया था, वहां पर हमने F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स को क्रॉस किया, यानी कि यहाँ पर जितने भी प्लांट्स आए वो सीड्स आए, वो कैसे प्लांट प्रोड्यूस करें, दे प्रोड्यूस प्लांट विद सीड्स हैविंग द राउंड एंड येलो सीड। दैट मींस 100% प्लांट्स कैसे होंगे, राउंड एंड येलो सीड बियरिंग प्लांट्स आएंगे जो इनके नेक्स्ट जनरेशन से डेवलप होंगे। अब यहाँ पर जो है इसी का अब हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन निकालने के लिए करेंगे सेल्फ क्रॉसिंग। और सेल्फ क्रॉसिंग में क्या करते हैं,
क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन अमंग themselves। इसका मतलब इन्हीं में से अगर 100 प्लांट्स हैं तो 100 प्लांट्स में से हम 2 प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे और दोनों कैसे होंगे, राउंड एंड येलो, और यहाँ पर क्या होगा, सेम जीनोटाइप यहाँ पर प्रेजेंट होगा। चलिए अब इसमें आगे चलते हैं। यहाँ पर क्रॉस किया मैंने RRYY यानी कि सेल्फ क्रॉसिंग, और सेल्फ क्रॉसिंग में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर इसी को मैं लिखती हूँ यहाँ पर, दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर मैं उसी का एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने किया था जो है वो मतलब राउंड एंड येलो, तो हमारा क्या गया था, F1 जनरेशन आई थी हमारी जो है वो राउंड RRYY। अब हम यहाँ पर सेल्फ क्रॉस करेंगे टू फाइंड आउट द F2 जनरेशन। तो हम कैसे क्रॉस कर रहे हैं, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y एंड द स्मॉल, दैट इज द हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो। दो को क्रॉस किया, तो जब हम F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स को क्रॉस करते तो दिस इज द सेल्फ क्रॉस हो गया ये। तो दो राउंड एंड येलो हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो सीड बेयरिंग प्लांट को क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो कैसे अप्लाई होगा। अब यहाँ पर जब गैमीट बनाएंगे तो गैमीट कैसे बनेंगे, वन, क्योंकि दोनों ट्रेट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इट मीन्स एक तो होगा कैपिटल R और एक Y में से सेलेक्ट, तो एक तो हो गया कैपिटल R कैपिटल Y। सेकेंड अगर मैं लूं तो दूसरा रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गया, यहाँ पर दूसरा रिप्रेजेंटेटिव हो गया कैपिटल R एंड स्मॉल y, दिस वन ये है। थर्ड रिप्रेजेंटेटिव मैं लूं तो क्या हो गया, स्मॉल r कैपिटल Y, एंड व्हाट इज द अनदर वन, दैट इज स्मॉल r एंड स्मॉल y। Is there any other probability of combination of these two different alleles? देखिए कैपिटल R और Y के कॉम्बिनेशन बनाने तो कैपिटल R एंड कैपिटल Y, कैपिटल R एंड स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। यानी कि कैपिटल R गैमीट में नहीं हो सकता क्योंकि सेम फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ना कैपिटल Y हो सकता है, ना स्मॉल y हो सकता है। वो इंडिविजुअल के अंदर हो सकता है, वो केम जो है गैमीट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इट मीन्स सेम टाइप ऑफ गैमीट्स आर आल्सो फाउंड। अगर ये मेल गैमीट है तो इधर क्या बनेंगे, फीमेल गैमीट। तो सेम टाइप ऑफ गैमीट, दैट मीन्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन अ हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के कितने गैमीट्स बनेंगे, देयर इज अ चांसेस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। मैं टाइप्स बोल रही हूँ, नंबर में बात नहीं कर रही हूँ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड द सेम टाइप ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय दिस वन। अब देखिए, अब यहाँ पर हम जो है जैसे हमने पहले क्रॉस किया था उस तरह से शो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पनेट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारे जो टोटल रिजल्ट्स होंगे यहाँ पर कितने होंगे वो हमारे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पहले गैमीट्स, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगी। आर वाई सेम वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड द स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड द स्मॉल आर स्मॉल। तो ये बन गए हमारे यहाँ पर गैमीट्स। इट मीन्स these 4 gametes are male gametes and these are the 4 female gametes. It means how many phenotypes, how many results we get in the F2 generation. Each one get the, जितने यहाँ पर होंगे उतने ही उसके डबल हो जाएगा। That means each one get the 4 chance. तो 4 को 4 chances मिलेंगे, तो कितना हो गया यहाँ पर टोटल हमारे पास जो है कितना हो जाएगा, 16 रिजल्ट्स वी गेट। तो यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर इनको क्रॉस करती हूँ, तो यहाँ पर मैं इसके लिए बनाऊंगी पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर के थ्रू यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और पनेट स्क्वायर में मैं यहाँ पर F2 जनरेशन को शो करूंगी। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज द, इस तरह से 1 2
3 एंड द 4 यहाँ, और यहाँ पर मैं लेती हूँ यहाँ पर गैमीट्स 1 2 3 एंड द 4। ये हमारे टोटल यहाँ पर हमारे क्या बनते हैं, ये क्रॉसेस बनते हैं यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे जो है वो क्या बने, इस तरह से हमारे 4 रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पर। एक तरफ हम मेल के गैमीट्स लिखेंगे, क्या बने थे हमारे आर वाई, सेकेंड इज कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर small r and the small y, and the last one is left। और यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप के गैमीट बने हमारे वो क्या बने, स्मॉल r, यहाँ पर बने हमारे स्मॉल r स्मॉल y। तो ये 4 टाइप के यहाँ पर गैमीट्स बने। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट चलती हूँ इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपके रिजल्ट में, तो यहाँ पर सेम उसी तरह से हम फीमेल के एक दूसरे गैमीट्स रहेंगे, तो सेम सीक्वेंस में लिखेंगे आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए, अब दिस इज द पनेट स्क्वायर, यानी कि चेकर बोर्ड की फॉर्म में मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और यहाँ पर दिस इज द पनेट। ये देखिए, अब मुझे ये ब्लॉक फिल करना है, तो मैं इसके सामने वाले दिस वन एंड दिस वन, तो क्या हो गया हमारा आर आर वाई वाई, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड द स्मॉल वाई, दिस इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, दिस वन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड द स्मॉल वाई, दिस वन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड द स्मॉल। यानी कि जो रोज में आपके रोज और कॉलम्स में जो सामने है, जस्ट उसी को कंबाइन आपने करना है। दिस वन दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड द स्मॉल वाई, दिस वन कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड द स्मॉल वाई, दिस वन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड द स्मॉल वाई। मैंने क्या बताया था, लिखते हुए आप यहाँ पर किस चीज का ध्यान रखेंगे, पहले हमेशा डोमिनेंट लिखेंगे, ये नहीं कि पहले यहाँ पर आप आर स्मॉल आर का स्मॉल आर से लिखेंगे। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। सेम यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड द स्मॉल वाई, दिस इज कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड द स्मॉल वाई, यहाँ पर small r capital Y and the small capital Y and the capital Y। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आ जाते हैं, तो दिस इज स्मॉल r कैपिटल Y and the small y। यहाँ पर दिस इज कैपिटल R small y and the small y, this one small r capital Y and the small, और यहाँ पर small r y and the small। ये होता है हमारा यहाँ पर चेकर बोर्ड कंप्लीट। ये मैंने लिख दिया सबके जीनोटाइप, यानी कि कितने हो गए 4, यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, टोटल कितने हो गए, तो यहाँ पर डबल हो गए, सबको डबल चांस। तो यहाँ पर जो है हमारे टोटल 16 रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, लेकिन 16 में से हमारे कितने इंडिविजुअल्स का फिनोटाइप क्या हो गया, ये है जीनोटाइप। अब मैं इनका फिनोटाइप लिखती हूँ, तो आर इज डोमिनेटेड कैपिटल, तो ये कैसा हो गया राउंडेड येलो, ये हुआ। ये भी कैसा होगा राउंडेड येलो, यहां भी राउंडेड येलो। दिस वन नेक्स्ट वन इज ऑल्सो कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो स्मॉल वाई एक्सप्रेस नहीं करेंगे, दैट इज राउंडेड येलो। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर दिस इज ऑल्सो राउंडेड येलो,
नेक्स्ट दिस इज कैपिटल आर इज प्रेजेंट, दैट इज राउंड। लेकिन यहां पर कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है, वो हेट्रोजाइग, यहाँ पर क्या होमोजाइगस फॉर्म में रिसेसिव, तो यहाँ पर क्या होगा राउंडेड ग्रीन। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो दैट इज राउंडेड येलो। नेक्स्ट वन इज कैपिटल आर, दैट इज राउंड, एंड दिस इज ग्रीन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट यहां पर आते हैं, इस वाले फॉर्म में राउंडेड येलो। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई इज प्रेजेंट, दैट मीन्स राउंडेड येलो। दिस वन स्मॉल आर, तो राउंड नहीं रहेगा, अब कैसा हो जाएगा, दैट मीन्स इट कम्स आउट टू बी wrinkled, बट कैपिटल वाई इज प्रेजेंट, तो कौन सा कैरेक्टर होगा, wrinkled एंड येलो। नेक्स्ट फिर यही हुआ wrinkled एंड येलो। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी सेम हुआ, दिस इज ऑल्सो राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो है कैपिटल आर और कैपिटल वाई का जहां भी कॉम्बिनेशन होगा डोमिनेंट का, कैपिटल आर कैपिटल वाई डोमिनेंट आर, तो कैसा होगा राउंड एंड येलो। यहां पर जो है दिस इज कैपिटल स्मॉल आर में से कौन एक्सप्रेस करेगा, आर एक्सप्रेस, दैट मीन्स इट इज राउंड। एंड दिस इज अ recessive y is present, that is round and green is present। यहां पर नेक्स्ट चलते हैं, तो यहां पर क्या है, दिस इज wrinkled yellow is present, this is, and this one last one is small r small y, that is it is homozygous recessive। तो recessive है, तो ये क्या होगा हमारा green and wrinkled। तो wrinkled ग्रीन हम कह रहे हैं इसको, मैं दोबारा से लिख देती हूं इसको, wrinkled एंड ग्रीन। तो ये आ गए हमारे टोटल 16 जीनोटाइप्स। अब यहां पर देखो, इसमें जो है अगर मैं यहां पर फिनोटाइपिक रेशियो लिखती हूं, इट्स फिनोटाइपिक रेशियो कैलकुलेट करो। यहां पर हमारे 9 राउंडेड येलो, आउट ऑफ टोटल 16 राउंडेड येलो कितने हैं, 9। अब मैं राउंड और ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन है, तो 1 2 एंड 3, तो राउंड एंड ग्रीन कितने हुए, राउंड और ग्रीन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई का रिसेसिव है, तो कैसे एक्सप्रेस करेगा, इट एक्सप्रेसेस इन होमोजाइगस कंडीशन। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या हो गया, राउंड एंड ग्रीन। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं हमारे wrinkled और येलो। wrinkled और येलो देखो 1 2 एंड 3, तो ये कितने आ गए हमारे, दैट कम्स आउट टू बी 3, क्या है हमारे wrinkled येलो। तो wrinkled के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर, आर, और उसके लिए येलो के लिए दिस वन। नेक्स्ट जो है हमारे एक क्या आता है, wrinkled ग्रीन। तो wrinkled ग्रीन कितना आया, 1, and it is represented by a small r and the small y। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर। तो हमारी जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है, 9:3:3:1। तो F2 जनरेशन की हमारी फिनोटाइपिक रेशियो ये होती है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट मीन्स सेपरेशन। तो यहाँ पर अगर ये 2 डिफरेंट जीन पेयर सेपरेट नहीं होते, तो हमारे जो है उस केस में आर आर वाई वाई के केस में अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई से सेपरेट नहीं होता, तो हमारे पास कितने गैमेट्स बनते, हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही गैमेट्स बनते जो हमारे पहले बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इट मीन्स कैपिटल आर इट असॉर्ट independent of this y, that means it can form combination with this y also। और ये हमारे कैसे बन गए, 2 different type के gametes बने along with the parental type। तो जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स जो है यहाँ पर वेरी किए, यानी कि जो कैरेक्टर है, यानी कि जो ट्रेड्स है, उनके एलियस जो है,
जो टू डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, दे कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और यहाँ पर हमारी फेनोटाइपिक रेशियो आती है ये। आप इसकी जीनोटाइपिक रेशियो एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा कि टोटल राउंडेड येलो होमोजाइगस सेम कैरेक्टर वाले, सेम एलील्स वाले कितने आते हैं। फिर मैं इसको आपसे डिस्कस भी करूंगी। फिर दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। ये होता है हमारे 3 लॉज कंप्लीट जो हमने डिस्कस किए। लॉज कौन कौन सा? फर्स्ट वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस and second is the law of segregation related with the monohybrid cross, and the third law is law of independent assortment, or law of independent assortment is related with the dihybrid cross. That's all in today's lecture. Thank you.